गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम वरुण अग्रवाल एंड आई विश कि आप अपने घर पे होंगे और अपने परिवार के साथ में सुरक्षित होंगे। So जैसा कि as we have started the biotechnology, so in the biotechnology we have finished the two lecture, and that in two lecture we went go through with the introduction ki exactly what is a biotechnology, what is the role of biotechnology, okay, and why we introduce that biotechnology in your curriculum, clear, and what is the role of biotechnology in the human welfare or for the living organism welfare, clear. So in third lecture and today in third lecture we will just go with some genetic engineering terms, okay. Once we complete these terms, then it would be easy for me and it would be easy for you to understanding about the process of biotechnology, about the process of the genetic engineering, like how we do the surgery of cell. Like surgery, it means we just cut the cell and we take out the DNA, then we add the some other part of DNA, then we again put it in the other cell. So that is, it is something tough, okay. It is not an easy thing, it's tough, it's a kind of surgery. So before moving on the surgery, we should know about the tools that we use in genetic engineering, ठीक है। हम उन जेनेटिक इंजीनियरिंग में होने वाले टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए। सो बिफोर मूविंग ऑन द थर्ड लेक्चर, इट्स टाइम टू अनाउंस द स्टार स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस का मुझे आंसर दिया। द स्टूडेंट्स आर विशाल, चारू एंड महक, ओके। ये तीन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अपना आंसर दिया मुझे, ओके। एंड अगेन मैं अगेन आप अनदर स्टूडेंट से भी विश करता हूँ, तो प्लीज आप अपना आंसर भी मुझे दीजिए, बिकॉज ये वही स्टूडेंट थे जिन्होंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर का भी आंसर दिया था, ओके। इन केस इफ यू नीड टू बी अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से समझाऊं, तो प्लीज यू कैन सेंड मी मैसेज, इवन यू कैन कॉल टू मी, ओके। इट्स देयर इज नो लाइक देयर इज nothing is any there is any there is like nothing is kind of the hesitation, okay. So if you feel hesitation to call me, you can send a web message to me, okay, that doesn't matter, okay. So let's move on the next topic, the genetic engineering terms, okay. So like we have studied, like I told you this terminology that we should know about the genetic engineering, like about the genes, DNA, plasmid, vector, enzymes, progeny cell, host cell, recombinant DNA replication, restriction enzyme, that and the cloning. That word you should know in a detail, like what is exactly cloning, that you should know in detail. About the restriction enzyme, you should know about the detail. Enzyme, you should know about the detail. Like each and everything you should know in detail, okay. Gene is not an only single word, it's like consist of the many theory, okay. Same as DNA is not a single word, okay. Everything is start from a DNA, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी आप देख रहे हो, ओके, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है, आप जो भी देखते हो, जो फील करते हो, जो आप आपके जो इमोशंस हैं, ओके, आपकी जो लाइक पढ़ने की चाहत जो होती है, ना पढ़ने की भी जो चाहत होती है, खेलने की तरफ जो रुचि, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर डीएनए। इवन प्लाज्मिड, दैट यू शुड नो इन डिटेल, okay. Vector, enzymes, progeny cell, host cell, recombinant DNA, replication, restriction enzyme, you should know in a detail, clear. So that's why the 12th biology consists of the many topics that you should know on details. Even most of your topic you have studied earlier in the 11th classes, so that's why I choose that topic, so I can revise a few terms like DNA you have studied, genes you have studied, plasmid you have studied, enzymes you have studied, okay. Even like replication you have studied, that you have studied earlier. So now it would be easy for me to revise your all those points which you have studied in 11th class. So ये सब चीजें मेरे लिए इजी होंगी इन चीजों को साथ साथ रिवाइज करने के लिए। So आज हम इन टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। Once we get to know about this terminology, then we will go move on the process, how we perform the genetic engineering, okay, in the lab, okay. One thing more, आपके सिलेबस में जो है, ओके, वॉट एवर थिंग इन योर सिलेबस, दैट्स ओनली आर्टिफिशियल काइंड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल काइंड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपके सिलेबस में जो भी कंटेंट है बेटा, दैट्स रिलेट ओनली टू द आर्टिफिशियल मैनर, ओके। नेचुरली वी आर लाइक नेचुरल प्रोडक्ट, सो it's not in your syllabus. So main thing is that जो भी हम terms use करेंगे, that term we use in a lab, ये lab में use किए जाते हैं, like enzyme that we use in a lab, restriction enzyme that we use in a lab, because ये genetic engineering it is performed in a lab only, ये lab में perform की जाती है। So याद रखिएगा,
ये सब चीज़ें लैब में परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है? इनके जैसे कि अगर आपसे बोले कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, ठीक है? दैट इज़ नॉट अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट्स अ बायोटेक्नोलॉजी, बट दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज़ अ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। सेम विनेगर फॉर्मेशन दैट्स नॉट अ जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज़ वी आर नॉट चेंजिंग द डीएनए. We are not going to change the DNA. We are just doing some bioprocess. Okay, so that is a bioprocess engineering. Clear? So there is a sufficient difference between the genetic engineering and the bioprocess engineering. So even with the example, you should know about the genetic engineering and as well as your bioprocess engineering. So let's start with the terms that we should know. Okay, बाय द वे दैट आई होप सो कि आपको इनके बारे में आइडिया होगा. इवन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे इसका आंसर भेजा था बिकॉज लास्ट टाइम मेरा क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीन्स एंड डीएनए, बिकॉज क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे आपको पढ़ाना था. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने मुझे आंसर भेजा, ओके, लेकिन सबका आंसर सही था. बट एग्जैक्टली होता क्या है कि आप जो आंसर कभी कभी भेजते हैं वो आंसर क्या होता है कि वो एक रटा हुआ आंसर होता है, लाइक जो आपकी बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है या इंटरनेट पर अवेलेबल होता है. इस बुक के रटे हुए आंसर को या फिर बुकिश नॉलेज को या फिर आपके जो इंटरनेट पे अवेलेबल नॉलेज है उसको अगर आप डायरेक्टली उस पे फोकस करते हैं तो व्हाट हैपन कि एक टाइम के बाद में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी लैंग्वेज याद है, उस लैंग्वेज पता है, वो बड़ी सी लैंग्वेज पता है, ठीक है, इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंस पता है, लेकिन एक्चुअली अंदर उसके क्या छुपा हुआ है वो हम नहीं जान पाते. सो always when you give any reply, okay, when you give any reply or when you give any answer, so it should be simplify. ओके, जितना ज्यादा कंटेंट को आप सिंप्लीफाई करेंगे उतना ज्यादा आपका कंटेंट, आपका आंसर उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है. सो हमेशा अपने आंसर को इस तरीके से दीजिए कि एक लेमैन भी उसको समझ जाए. सो इट मीन्स आपको वो अच्छे से आता है. क्लियर? अगर आपने देखिए आपको नॉलेज है या नहीं है उसको सिर्फ बताने का एक ही जरिया है. किसी भी एक लेमैन को पकड़िए जिसको बायोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, और उसको अपना एक डिस्कशन कीजिए बायोलॉजी का. इफ ही एंड शी इज एबल टू अंडरस्टैंड इट मीन्स यू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक. सो दैट्स व्हाई एक तरीका यही होता है अपने कंटेंट को जानने का कि मुझे आता है या नहीं आता है. एक लेमैन से डिस्कस कीजिए, ठीक है, उनसे डिस्कस कीजिए कि आपको वो आता है या नहीं आता है, आपको खुद को पता चल जाएगा. अगर वो लेमन समझ सकता है इट मीन दैट यू नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द जीन. जीन इज द थिंग, इज द पीस ऑफ द डीएनए, ठीक है. मैं आपको समझाता हूँ वो टॉपिक. देखिए दैट्स अ पार्ट ऑफ द डीएनए व्हिच कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. देखिए जैसे कि आपके सामने डीएनए का एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपके सामने है. इस डीएनए में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है. डीएनए बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, जो आपके डीएनए है दैट इज द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. सो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. क्लियर? तो डीएनए का एक पार्ट होता है, इसमें डीएनए में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोडिंग पार्ट, दूसरा होता है नॉन कोडिंग पार्ट. हमेशा माइंड में रखिएगा डीएनए के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोडिंग पार्ट और दूसरा होता है नॉन कोडिंग पार्ट, ठीक है. जो कोडिंग पार्ट होता है इट मीन्स को आप कोड करके उसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स उस कोड पार्ट को बोलते हैं जीन. और जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है मतलब आप उसको कोड नहीं कर सकते और वो जीन कन्वर्ट नहीं हो पाता, मतलब वो जीन लाइक उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाती. तो जीन में दो पार्ट हो गए, एक हो गया कोडिंग पार्ट, दूसरा हो गया नॉन कोडिंग पार्ट. सो मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड आपका कोडिंग पार्ट है, मतलब ये जीन है आपका, और ये रिमेनिंग आपका नॉन कोडिंग पार्ट है. सो जो डीएनए का वो पार्ट जिसमें कोड होते हैं और वो कोड अपने आप को प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप ट्रांसलेशन कहते हैं, तो उसे हम जीन कहते हैं, ठीक है. सो इवन आपकी बॉडी में 97 to 98% जो डीएनए होता है बेटा वो जंक डीएनए होता है. आपकी बॉडी जो पूरी सिंथेसाइज होती है ना, केवल 1 या 2% ही इसमें कोडिंग पार्ट होता है, इसके अलावा 97% आपका नॉन कोडिंग पार्ट होता है डीएनए के अंदर, ठीक है. नाउ जब ये डीएनए किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, मान के चलिए कि एक डीएनए में, मतलब कौन सा डीएनए, कौन से पीस के डीएनए की बात कर रहे हैं, मतलब उस जीन को, मतलब जिसके अंदर जो कोड हो सकता हो, जो प्रोटीन में कोड हो सकता हो, ठीक है, जो प्रोटीन में कोड हो सकता है, जब आप उसको एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं,
ठीक है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब उसको आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, एलन का मतलब होता है बेटा होस्ट ऑर्गेनिज्म या रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म। देखिए मैंने बताया था दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एक होता है आपका डोनर और दूसरा होता है होस्ट, मतलब जिसका डीएनए लिया जाता है दैट इज अ डोनर, और जिसको दिया जाता है उसे आप एलियन ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, उसको आप होस्ट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, उसको रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो जब ये डीएनए का पीस किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, सो सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म जो उस फॉरेन डीएनए को रिसीव करती है उसे प्रोजेनी सेल्स बोलते हैं। ये वर्ड्स हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ सारे वर्ड्स क्लियर लिखे हैं। क्या? फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए मतलब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये आपका डोनर डीएनए, ये आपका डोनर सेल है, ठीक है, और ये क्या है? ये आपकी रिसिपिएंट सेल है। तो आपने क्या किया, इस सेल से एक डीएनए को लिया, ठीक है, और जो डीएनए लेके आपने रेसिपिएंट सेल में डाल दिया। आपने एक डीएनए लिया डोनर सेल से और डोनर सेल से वो डीएनए लेके रेसिपिएंट सेल में डाला। सो जो डीएनए, अब वो रेसिपिएंट जो सेल है उसके लिए वो डीएनए क्या फॉरेन डीएनए हो गया, क्योंकि वो डीएनए बाहर से आ रहा है। जो चीज बाहर से आती है, आउटर एटमॉस्फेयर से आती है, किसी दूसरी जगह से आती है, ओके, वो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल्स हो गए। तो वो जो सेल उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो सेल फॉरेन डीएनए को रिसीव करती है उसे प्रोजेनी सेल बोलते हैं। ये वर्ड आपको पता होने चाहिए, ओके। DNA would not be multiply itself in a progeny cell of the organism when it integrated into the genome of recipient. It may multiply and it will be inherited along with the host DNA. क्लियर हुए आपको दो तीन वर्ड्स? डोनर सेल क्या होती है, रेसिपिएंट सेल क्या होती है, ओके, रेसिपिएंट सेल क्या होती है, और रेसिपिएंट सेल जिस ऑर्गेनिज्म की रेसिपिएंट सेल होती है उसको हम एलियन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो सेल उसको रिसीव करती है उसको प्रोजेनी सेल बोलते हैं, ठीक है। मैं अगेन आपको एनिमेशन सब कुछ दिखाऊंगा। डीएनए देखिए, इसमें एक लाइन लिखी हुई है आपकी जो थर्ड लाइन है, अगर आप डायरेक्टली डीएनए को विदाउट इंटीग्रेट किए दूसरे जीनोम में डाल देंगे, दूसरे सेल के जीनोम में डाल देंगे, तो कभी वो ऑर्गेनिज्म में वो डीएनए इंटीग्रेट नहीं करेगा या फिर सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जैसे मान के क्या किया आपने, डायरेक्टली इस डोनर सेल से डीएनए लिया और उस डीएनए को डायरेक्टली आपने होस्ट सेल में डाल दिया विदाउट एनी इंटीग्रेशन, सो वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेगा। सो ऑलवेज जरूरी है कि उसके डीएनए को, ठीक है, होस्ट सेल के डीएनए सॉरी जो आपके डोनर सेल के डीएनए को, ठीक है, जो आपके डोनर सेल के डीएनए को रेसिपिएंट सेल के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट करना जरूरी है। अगर आप इंटीग्रेट ना करके डायरेक्टली उसको आप डाल देंगे, सो व्हाट हैपन, वो कभी भी वो सेल उसको रिसीव नहीं करेगी, कभी भी रिसीव नहीं करती। सो दैट्स व्हाई दोनों डीएनए का इंटीग्रेशन होना जरूरी है। इंटीग्रेशन के बाद में उसको सेल में डालिए, देन इट वुड मल्टीप्लाई एंड देन फर्दर वो उस डीएनए उस होस्ट सेल का ही पार्ट बन जाएगी या प्रोजेनी सेल का पार्ट ही बन जाएगी। जो चीजें दिखाई मैं एनिमेशन से दिखा देता हूँ। देखिए ये माउस ए, मैंने आपको ये एनिमेशन लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये माउस ए जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये माउस बी, ठीक है, जिसको आप ये अपना डीएनए मान के चलो, हम चाह रहे थे कि इस माउस की भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, बड़ी लार्ज हो जाए आंखें, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं और एलियन ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो ये पता होने चाहिए वर्ड्स आपको, ठीक है। सो अगर आपने देखा कि हमने इसको सेल निकाला, ओके, हमने फिर इसकी सेल को निकाला, बट ठीक है, और हाँ ये आपकी हो गई डोनर सेल और ये हो गई प्रोजेनी सेल, क्योंकि हम इसका डीएनए इसका डीएनए हम इसमें डालेंगे और फिर इसके साथ इसको हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि अगर आपने इन केस क्या किया, आपने इंटीग्रेशन नहीं करवा रहे, हमने क्या किया, डोनर ऑर्गेनिज्म से डीएनए को निकाला, ठीक है, और डायरेक्टली उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म की न्यूक्लियस में डाल दिया, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल में डाल दिया, या फिर कह सकते हो प्रोजेनी सेल में हमने डाल दिया। इसको आप प्रोजेनी सेल भी बोल सकते हो, होस्ट सेल भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हो, लेकिन आपको दोनों वर्ड पता होने चाहिए। सो कभी भी अब क्या होगा, आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन गई, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। अब होगा क्या कि ये कभी भी ये प्रोजेनी सेल एक फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करती। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें ऑलरेडी जीनोम के साथ में वो फॉरेन डीएनए इंटीग्रेट होना चाहिए, उसके साथ में एसोसिएट होना चाहिए। मतलब कंडीशन ऐसी हो गई,
एक सेल के अंदर कंडीशन ऐसी हो गई, ये हो गया आपका होस्ट डीएनए, ओके, और ये हो गया आपका डोनर डीएनए। जैसे आप समझ लीजिए दोनों की बात है, चाहे उसको आप डोनर डीएनए मान लीजिए, ये इसका होस्ट सेल का डीएनए मान लीजिए। ये दोनों एसोसिएट ही नहीं है। जब दोनों एसोसिएट ही नहीं है तो ये तो मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। और सेल का एक रूल है, जो सेल में काम नहीं होता, जिसमें सेल का कोई काम नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, सेल मल्टीप्लाई, प्रोजेनी सेल इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि ये इसके उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट डीएनए का कोई पार्ट ही नहीं है, उसके डीएनए का पार्ट नहीं है, ये कोई बाहर का कोई मटेरियल आ गया। तो प्रोजेनी सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और वो डीएनए उसमें खत्म हो जाता है। वो पूरा डीएनए उसके अंदर, उस सेल उस डीएनए को खत्म कर देती है, क्योंकि वो उसका पार्ट ही नहीं है। ठीक है, वो उसका पार्ट ही नहीं है। दैट्स व्हाई उसका इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको लास्ट डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, वही देखेंगे। माउस है, दैट इज अ डोनर ऑर्गेनिज्म, माउस भी जैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म, रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म है, एलन ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट वी डू, हमने यहाँ से डीएनए को लिया, इसके डीएनए को लिया, देन वी इंटीग्रेट इट, and after the integration then we put in this, then we इसके इंटीग्रेशन के बाद में हमने क्या किया, इस इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेट करने के बाद में फिर हमने, क्या आप ऐसे कर सकते हो, ये इंटीग्रेट करने के बाद में फिर हमने इसको इस सेल के अंदर डाला, फिर इस सेल में डालने के बाद हमने इस माउस के अंदर इसको डाला। सो अब क्या हुआ, डोनर सेल का डीएनए प्रोजेनी सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया, दोनों आपस में कंबाइन होंगे, और फिर कंबाइन होने के बाद में फिर आपने उसको दोबारा से सेल में डाल दिया, दोबारा से सेल में डाल दिया। सो व्हाट हैपन, अब जब भी प्रोजेनी सेल का या होस्ट सेल का डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसके साथ साथ डोनर सेल का डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, और रेप्लिकेट जैसे होगा तो वो बढ़ेगा और अपनी प्रोटीन अपना वो कोड दिखाएगा और प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और जो आपको चाहिए वो बनेगा। समझ में आ गया? सो दैट्स व्हाई अगर आपका डीएनए इंटीग्रेट नहीं है, सो इट वुड नॉट फर्दर मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? इट वुड नॉट फर्दर मल्टीप्लाई, सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन इज अ मैंडेटरी। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेट ही नहीं कर रहे, अलग से आपने डाल दिया, सो वो उसको सेल नहीं आइडेंटिफाई करेगा। उसके लिए सेल के लिए तो कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो गए। सो जब सेल के लिए कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई फॉरेन कोई मटेरियल है, कोई बाहर से कोई आया कोई मटेरियल है, सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और कुछ समय के बाद में सेल की डेथ हो जाएगी। दैट्स व्हाई क्या करना है, उस सेल के अंदर जो प्रेजेंट ऑलरेडी डीएनए उसके साथ आपस में कंबाइन करके डाल दीजिए, जिससे प्रोजेनी सेल का जैसे प्रोजेनी सेल फर्दर जैसे जैसे डिवाइड करेगी तो उसका डीएनए भी डिवाइड होगा। ठीक है, फिर साथ साथ उसके होस्ट सेल का डीएनए भी डिवाइड होता जाएगा। क्लियर? Okay, this is because the alien piece of DNA has a part of the chromosome which has a ability to replicate। ये सारी लाइन ध्यान रखना, ये लाइन सारी मैंने आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी से ली है। ये सारी की सारी लाइन जो लाइन लिखी गई है, बट मैं उस लाइनों को तोड़ के समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इन सारी लाइनों को मैं आपको तोड़ के समझा रहा हूँ। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम व्हिच हैज अ एबिलिटी टू रेप्लिकेट। जो मैंने आपको समझाया है, उन्होंने इस तरीके से उसको लिखा है एनसीईआरटी में कि जो the alien piece of the DNA now it has become part of the chromosome। alien piece of the DNA it has become part of the chromosome now which has the ability to replicate। ठीक है, अब जो आपने इंटीग्रेट कर दिया दोनों के डीएनए को, जो आपने इंटीग्रेट कर दिया, अब इंटीग्रेट करने के बाद में इट हैज ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम और जो फर्दर आपका रेप्लिकेट होगा। अब देखिए 3-4 कभी-कभी वर्ड कंफ्यूज करते हैं आपको। क्या पहले सडनली हम डीएनए और जीन के बारे में स्टडी कर रहे थे, अब सडनली क्रोमोसोम आ गया। ये डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, कुछ 3-4 चीजें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं कि तीनों में रिलेशन क्या है। तो मैं वो रिलेशन क्लियर कर देता हूँ कि जब डीएनए को आपने इंटीग्रेट किया, अब वो लिख रहे हैं इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम जो अब आपके रेप्लिकेट होने की एबिलिटी रखता है। अब ये क्रोमोसोम से क्या रिलेशन है उस डीएनए का, वो देखिएगा। क्रोमोसोम होते क्या है, क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, डीएनए और स्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। मेजरली पार्ट जो होता है उसमें डीएनए और स्टोन प्रोटीन होता है क्रोमोसोम में। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम, जैसे मान के चलिए ये देखिए, ये दिख रहा है, ये यूकेरियोट का एक क्रोमोसोम है। ठीक है, आपका ये डीएनए है और ये स्टोन प्रोटीन है। देखिए देखिए बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक सेल के अंदर ओके,
एक सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए जो प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, ओके, इट्स अराउंड द 12 मीटर लॉन्ग इन ए सेल। यस, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक सेल के अंदर 12 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है। अब सोचिए, अब आप खुद सोचिए, एक सेल जो माइक्रो साइज की होती है उसके अंदर 12 मीटर का डीएनए कैसे आप फिट करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो भगवान ने बहुत अच्छी पैकिंग की है, पैकेजिंग की है। वो क्या करते हैं, डीएनए को कॉइल करते हैं अराउंड ए स्टोन प्रोटीन, कॉइल करते हैं, और कॉइल करने के बाद में इतना हाईली कॉम्पैक्टेड कर देते हैं, और वो हाईली जो कॉम्पैक्टेड होता है उसको क्रोमोसोम बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है, कॉइल हो रहा है, और इतना हाईली कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, मतलब इसको इतना दबा दिया जाता है, और दबाने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर आपका क्रोमोसोम होता है। ये देखिए, ये क्रोमोसोम की आर्म्स है, ये आपका सेंट्रोमियर है, और फिर ये आपका, ये देखिए, ये आपका डीएनए, और आपका ये हो गया स्टोन प्रोटीन, दैट इज अ क्रोमोस। अब ये देखिए क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए भी प्रेजेंट है, आपका स्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, और उस डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनता है बेटा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने वहां लिख दिया कि सडनली क्या हो गया, क्रोमोसोम कहां से आ गया। सो एग्जैक्टली क्या हुआ बेटा, एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब आप डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे आपने डीएनए को बाहर निकाला, ठीक है, डीएनए को आपने उसके बाहर निकाला, मतलब आप उसके आप उस क्रोमोसोम से उसने अब होता क्या है कि आप जब न्यूक्लिक एसिड को बाहर निकालते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को बाहर निकालते हैं, सो उस न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड मतलब आपका डीएनए आपने बाहर निकाला, उसके साथ उस डोनर सेल के डीएनए को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद में वापस सेल के अंदर रख दिया। सो इट्स जस्ट नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट क्रोमोसोम। फिर क्या होगा, क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, फिर डीएनए रेप्लिकेट होगा, उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होगा, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर वो बढ़ जाएगा। पहले मान के चलो आप एक क्रोमोसोम के अंदर था, फिर जब क्रोमोसोम, फिर आपका जब सेल डिवाइड होता है, तो सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, क्रोमोसोम भी डिवाइड होंगे, क्रोमोसोम डिवाइड होंगे तो साथ साथ डीएनए भी डिवाइड होगा, डीएनए डिवाइड हो गया, अब वो डीएनए इंटीग्रेटेड हो चुका, तो अब इंटीग्रेटेड डीएनए डिवाइड होगा। सो ऐसी बहुत सारी सेल्स के अंदर वो फैल जाएगा। सो दैट्स व्हाई उन्होंने ये लाइन इसलिए लिखी है कि डीएनए हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम व्हिच हैज ए एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो डीएनए बेटा क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, और साथ साथ जितना ज्यादा रेप्लिकेट होगा उतना ज्यादा वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ओके। अब आपका आता है रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन वर्ड बार बार यूज हो रहा है। रेप्लिकेशन कुछ नहीं होता है, डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर दूसरे नए डीएनए का बनना, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये सब चीजें लाइनें आई थिंक आपको समझ में आ गई। फिर मैं अगेन समझा देता हूँ, बस डीएनए की पैकेजिंग की जाती है, जब डीएनए को आप पैकेजिंग कर देते हैं तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। इतना अभी आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी, देखिए क्रोमोसोम में क्या होता है बेसिकली बेटा, क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है। जैसे अब हम कह रहे हैं कि बार बार आपसे कह रहे हैं कि बार बार आपसे कह रहे हैं, ये सारे वर्ड ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होंगे लेटर ऑन, तो इसलिए अभी से आपको पता होना जरूरी है। क्या आपने डीएनए एप्लीकेशन पढ़ा है, डीएनए एप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा 11th में, श्योरली पढ़ा होगा। ओके, चाहे आप किसी मीडियम से बिलोंग करते हो, एप्लीकेशन तो 11th में ही आता है। रेप्लिकेशन में होता है क्या, बेसिकली डीएनए, बेसिकली क्या होता है, डीएनए बेसिकली अनकॉइल हो जाता है और एक फ्रॉक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर। सो उस फ्रॉक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। समझ में आ गया। उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस पॉइंट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर ORI कहते हैं। समझ में आ गया। क्रोमोसोम में देखिए डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम में। तो हम क्रोमोसोम के लेवल पे बात कर रहे हैं, ये सारे वर्ड आएंगे, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। क्रोमोसोम में एक डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिसे हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ए रेप्लिकेशन। जैसे मान के चलिए ये आपका डीएनए, डीएनए ठीक है, तो डीएनए में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। फॉर एन एग्जांपल कि वो ये दिख रहा है आपको मेरे टॉप पे, फिंगर देखिए, ये दिख रहा है, ये वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या होगा, इसी पॉइंट के ऊपर आपका डीएनए अनकॉइल हो जाता है, और अनकॉइल होने के बाद में दो टेम्पलेट्स बन जाते हैं, और दोनों टेम्पलेट्स के ऊपर फिर आपका डीएनए टेम्पलेट्स बन जाते हैं, फिर उसके ऊपर डीएनए का
फॉर्मेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। समझ में आ गया? सो ये क्यों पढ़ा रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं। होता है क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो जो इंटीग्रेटेड आपने किया था, जो दूसरा जीन्स आपने जो डाली थी डीएनए के साथ में, वो सेल के अंदर उस सेल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होंगी। सेल के अंदर मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है, जभी तो बेटा वो पूरी बॉडी के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी आएँगी। ठीक है? पूरी बॉडी की जभी तो प्रॉपर्टी आएगी उसके अंदर। तो दैट्स व्हाई उस सेल का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देख रहे थे कि माउस की आँखें बड़ी हो जाएँ, तो माउस के अंदर आँखें बड़ी जभी तो होंगी ना जब माउस के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, वो सब में वो डीएनए पहुँच जाए। ठीक है? क्योंकि माउस में जो सेल है वो कोई एक सेल से तो बना हुआ नहीं, माउस की आई कोई एक सेल से तो बनी हुई नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ आईज़ प्रेज़ेंट है, नंबर ऑफ सेल्स प्रेज़ेंट है। तो सभी सेल्स जब भी डिवाइड होंगी, जब रेप्लिकेट होंगी, जभी तो बेटा वो रेप्लिकेट होंगी, जभी तो आपका वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाएँगी जिससे आपकी आईज़ बड़ी हो जाएँ। ठीक है? सो REI is ORI sorry is a particular sequence in a genome at which replication is initiated. कैसे होता है? क्या होता है? इनिशिएट करता कैसे है कि उस ORI सीक्वेंस के ऊपर एक प्रोटीन बाइंड कर जाता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएटर प्रोटीन। और जैसे ही इनिशिएटर प्रोटीन इसे बाइंड करता है वैसे ही आपका डीएनए अनकॉइल हो जाता है और एक फ्रॉग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? एंड उसको अनकॉइल करने के लिए हेलिकेज एंजाइम यूज करते हैं। हेलिकेज एंजाइम अब इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड अप हो गया, अब इसके साथ में हेलिकेज एंजाइम बाइंड करता है, फिर जैसे आपका डीएनए की जो डीएनए होता है अनकॉइल हो जाता है। एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों बढ़ा रहा हूँ वो सुनिए। Therefore, the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be part of the chromosome, which has a specific sequence known as the origin of the replication. देखिए, एलियन पीस के डीएनए को किसी भी एलियन पीस के डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसके मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, एलियन पीस के डीएनए को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपका जो डोनर सेल का डीएनए है, ठीक है, वो उस क्रोमोसोम से जुड़े जिस क्रोमोसोम के ऊपर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए in an organism, it need to be a part of the chromosome which has a specific sequence known as a origin of replication. मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि उस एलियन पीस के डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, उस मल्टीप्लिकेशन होने के लिए बहुत जरूरी है कि वो डोनर सेल का डीएनए उस क्रोमोसोम से एसोसिएट हो जिसके ऊपर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सीक्वेंस प्रेजेंट हो। अगर ऑरिजिन ऑफ सीक्वेंस उस क्रोमोसोम के ऊपर ऑरिजिन ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो दैट्स व्हाई ये जो बेसिकली आपका डोनर सेल का डीएनए होता है, ये डोनर सेल का डीएनए केवल उस क्रोमोसोम से एसोसिएट होता है जिसके ऊपर ORI ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। क्योंकि वो ये देखिए आपको देखिए ये दिख रहा है आपको, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है डबल हेलिक्स है, ये डीएनए है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर डीएनए, और सर्कुलर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो मैं बैक्टीरिया सेल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल में देखिए, बैक्टीरियल सेल लें या फिर आप यूकेरियोटिक सेल लें, दोनों में रेप्लिकेशन का तरीका सेम होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में रेप्लिकेशन का तरीका और डीएनए को जो रिपेयर करने का तरीका, ठीक है, दोनों का तरीका सेम ही होता है, दोनों के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकेरियोटिक सेल में भी। तो यहाँ पे डीएनए आपका क्या है, एक कॉइल में है, और कॉइल में कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो ORI ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ये जो आपका डोनर सेल होता है उस क्रोमोसोम से एसोसिएट होता है जिसके ऊपर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा, जिससे कि वो फर्दर आपका रेप्लिकेट हो सके। अगर रेप्लिकेट नहीं होगा, उसके साथ रेप्लिकेट नहीं होगा, तो वो जो आपका जीनोम होता है वो कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए साथ साथ उसके बाइंड अप होने, इंटीग्रेट होने के साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उस जीन की क्लोनिंग हो, ठीक है।
So that's why the alien DNA is a link with the origin of replication, so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. So ये बहुत जरूरी है कि वो आपका जो एलियन डीएनए है, क्योंकि एलियन डीएनए क्यों बार बार वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि अब आपका डीएनए क्या हुआ, इंटीग्रेटेड हो चुका है, मतलब दूसरे टाइप का डीएनए बन चुका है। सो उस एलियन डीएनए को उस ओरिजिन एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जिससे कि वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी ए क्लोनिंग और मेकिंग ए मल्टीपल आइडेंटिटी कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। सो अब उसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती है, ठीक है। अगर एक बार वो बैंड अप हो गया, एक बार एसोसिएट हो गया, मान के चलो ये ओवर आई है, ठीक है, ये दिख रहा है ओ आर आई पार्ट है, जो अब आपका जो डीएनए है वो उसके साथ एसोसिएट हो गया। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो कुछ समय के बाद में यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होगा, साथ साथ उस एलियन डीएनए जो नया डीएनए आया था बेटा, उस डीएनए की भी कॉपीज बन जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? ये सारे टर्म्स हैं, दैट्स आपको पता होनी चाहिए। जब डोनर डीएनए और रेसिपिएंट डीएनए को आपस में एसोसिएट कर दिया जाता है, तो उससे जो बनने वाला नया डीएनए होता है, और उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनते हैं। एट दैट डीएनए शुड बी एसोसिएट थ्रू द आर्टिफिशियल मैनर, लाइक हम अगर आर्टिफिशियल मैनर यूज करते हैं, सो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये हम थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं। नाउ ओके, सो अब आपको कुछ एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम दैट वी यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहला, जैसे कि सबसे पहला एंजाइम, दैट एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल लाइसिस, एक ऐसा एंजाइम जो कि सेल लाइसिस के लिए जरूरत है। देखिए एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइम्स का काम ही होता है सबस्ट्रेट से बाइंड अप होकर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सेम सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको उस सेल के अंदर न्यूक्लियस को बाहर निकालना है, सॉरी सेल के अंदर डीएनए को बाहर निकालना है, ठीक है। तो डीएनए को बाहर निकालने के लिए उसके सेल का लाइसिस होना बहुत जरूरी है, मतलब उसके सेल की वॉल का लाइसिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एंजाइम एंजाइम जो सेल लाइसिस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एंजाइमेटिक, ओके, बायो एंजाइमेटिक्स बोलते हैं उनको, बायो एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल कि मान के चलो ये आपका डीएनए है, ठीक है। उस डीएनए में बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं उस डीएनए के अंदर, लेकिन हमें सिर्फ ये जीन ही चाहिए, मतलब इस जीन से ही कुछ, ऐसे मान के चलो हम एंटीबायोटिक बना रहे हैं, तो ये वाला जीन, ये इस पूरे डीएनए में केवल ये वाली वो जीन है जिस जीन से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है, तो हमें सिर्फ इस जीन को कट करना है, ठीक है। और ये जीन को कट करके हमें दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ में बाइंड अप करना है। तो हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर ही उस डीएनए को कट करते हैं, और जब ये डीएनए को कट करते हैं तो आपकी जीन सेपरेट हो गई, फिर आप उसको होस्ट डीएनए के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या होता है कि मान के चलो कि ये आपका होस्ट डीएनए है, ठीक है, सॉरी ये आपका डोनर डीएनए, ये आपने कट कर दिया, ये आपका डोनर डीएनए बन गया मत, और ये आपका होस्ट डीएनए, आपने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम डीएनए लाइगेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली करते हैं क्या, कैसे दोनों डीएनए जो है कैसे आपस में एसोसिएट होते हैं, ये एसोसिएट होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ में, ठीक है। तो ये बॉन्ड बनाते हैं फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ वन स्ट्रैंड एंड डीऑक्सीराइबोस ग्रुप ऑन द अनदर। आपने पढ़ा भी होगा ये, जब आपने डीएनए पढ़ा होगा, तो फॉस्फेट ग्रुप जो बेसिकली क्या होता है, ये जो डीएनए है, ये बेसिकली जो डीएनए, इस डीएनए का जो राइबो शुगर है, ठीक है, वो राइबो शुगर इस डीएनए के फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड अप हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो एक ऐसा एंजाइम जो दोनों डीएनए को एसोसिएट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी होता है, उसे हम डीएनए लाइगेज बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका रेप्लिकेशन एंजाइम्स। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। क्लियर? नाउ अब पढ़ते हैं एंजाइम फॉर सेल लाइसिस। हम सारे एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत है। सबसे पहला एंजाइम होता है जो कि सेल लाइसिस, मतलब सेल के लाइसिस के लिए जरूरी है। सो इसे हम बायोलॉजिकल सेल लाइसिस एंजाइम्स भी बोलते हैं। देखिए आपने बहुत सारे, देखिए अब सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। अब हम डिपेंड करता है कि हम कौन सी सेल को की वॉल को खत्म करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बैक्टीरियल सेल की वॉल को खत्म करना चाहते हो, तो बैक्टीरियल सेल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की, ओके। प्लांट सेल में अगर आप ये प्रोसेस करना चाहते हैं तो प्लांट सेल बनी होती है सेलुलोज की। एनिमल सेल में वॉल ही नहीं होती, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो अगर आप मान के चलो बैक्टीरियल, जैसे कि सदा मोस्ट ऑफ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल के साथ में, सो बैक्टीरियल सेल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। सो इन केस पेप्टिडोग्लाइकेन को अगर आपको डिसॉल्व करना है तो उसके लिए एंजाइम यूज किया था लाइसोजाइम एंजाइम। उसके लिए लाइसोजाइम एंजाइम यूज किया जाता है बिकॉज ये एक ऐसा एंजाइम है जिसकी इसकी प्रॉपर्टी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन को बनने से रोक देता है और पेप्टिडोग्लाइकेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है। इवन ये लाइसोजाइम एंजाइम ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। इवन इस जैसे अगर लाइसोजाइम एंजाइम अगर आप देखेंगे, आपकी सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है, आपके टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है। प्लीज नोट कर लीजिएगा, आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत यूज होंगे वर्ड लाइसोजाइम के। जैसे कि आपने सुना होगा कि सलाइवा जो होता है आपकी बॉडी में, जो सलाइवा होता है, ये सलाइवा एक सलाइवा जो होता है उसके अंदर लाइक आपकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। इवन आपके लाइसोजाइम में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट मैंने गलत वर्ड यूज किया, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। तो जो पर्सन को ज़्यादा आंसू आते हैं, जो ज़्यादा रोता है, उसमें उसमें उसके डिसइंफेक्ट होने के चांसेस, ओके सॉरी, उसके इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके सलाइवा में भी इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना भी हो तो बहुत जगह ऐसा बोला जाता है कि जब आप खाना खाएं तो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करना चाहिए, अच्छे से उसको चबाना चाहिए। तो चबाने के दो फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता और पीसेस हो जाते हैं बिल्कुल आपके फूड के, तो इसलिए उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि आपका सलाइवा उस फूड के चारों तरफ, सलाइवा जो होता है उस फूड के साथ मिक्स हो जाता है। सो उससे जब फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो अगर आपके फूड जो आप बाहर से ले रहे हैं उसमें कोई बैक्टीरिया भी होगा तो सलाइवा उसको खत्म कर देता है। इवन जब पानी भी पिए आप तो पानी को इस तरीके से पीना चाहिए कि आपका पूरा माउथ का सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाए। सो अगर वाटर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ डिजीज वाटर बॉर्न डिजीज होती है, सो वो सलाइवा, वो जो आपके सलाइवा में प्रेजेंट जो लाइसोजाइम एंजाइम है, वो एंजाइम क्या करेगा, उस बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन को खत्म कर देगा। और ध्यान रखना एक सेल के अंदर से पेप्टिडोग्लाइकेन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वो खत्म, बैक्टीरिया खत्म, ठीक है। इन केस अगर आप प्लांट सेल को खत्म करना चाहते हैं तो प्लांट सेल को खत्म करने के लिए जो आपके प्लांट सेल को खत्म करना चाहते हैं तो प्लांट सेल को खत्म करने के लिए सेलुलेज एंजाइम यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे सेलुलोज नहीं है, सेलुलेज है, CELLULASE, सेलुलेज, ठीक है। सेलुलोज तो वॉल होती है, सेलुलेज, ठीक है। और प्रोटीन, अगर आपके इन केस कोई प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, तो अगर प्रोटीन को आप खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोटीन को अगर खत्म करना चाहते हैं, मान के चलो आप क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, तो अगर आपको क्रोमोसोम की जो वॉल होती है वो पेलिकल की बनी हुई होती है, जो प्रोटीन रिच लेयर होती है, तो उसके अंदर डीएनए होता है। तो आपको क्रोमोसोम की वॉल को डिस्टर्ब करना है, रप्चर करना है, तो प्रोटीएज एंजाइम यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा अनदर एंजाइम्स भी होते हैं बट आपको अभी फिलहाल ये जानना जरूरी है। जैसे कि आपकी वॉल है, आपने क्या किया, एंजाइम्स यूज किए, ठीक है, तो क्या करेगा, ये इसकी वॉल को रप्चर कर देगा। अब ये एंजाइम डिपेंड करता है ये सेल बैक्टीरिया की है, प्लांट की है। बैक्टीरिया की होगी तो हम यूज करेंगे लाइसोजाइम एंजाइम, और ये होगा आपका सेलुलेज। मैं लिख देता हूँ, इट्स बाय मिस्टेक आ गया यहाँ पे, ठीक है, सेलुलेज एंजाइम यूज किया जाता है। फिर क्या होगा, सेलुलेज एंजाइम होने के बाद में ये सेलुलेज एंजाइम आ गया, सेलुलेज एंजाइम आ गया, फिर उसके बाद में आप इसकी पूरी वॉल को रप्चर कर देंगे। रप्चर करने के बाद में आप इसके डीएनए को सेपरेट कर लेंगे। अब आपने डीएनए को सेपरेट कर लिया, ये आपका डीएनए आ गया। अब उस डीएनए को आप कहीं, आप उस डीएनए की आप कटिंग कर सकते हैं, फिर उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस है। तो फिलहाल अभी यहाँ तक के इतना ही, ठीक है। ओके, सो अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, बहुत सारा कुछ एंजाइम्स पढ़ना बाकी है। अब धीरे-धीरे हम जैसे कोर पार्ट के अंदर हम मूव कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आपका भी कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंसर्न होंगे उतना ज़्यादा मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। सो आज का जो क्वेश्चन है प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और मुझे उसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, प्लीज़ आप जितना ज़्यादा हो सके अपना आंसर मुझे दीजिए। ओके, आज आपका जो आंसर है लिख लीजिए, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन एक पॉलीमर है, ये किस-किस मोनोमर से मिलके बना हुआ होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन एक पॉलीमर है जो बैक्टीरियल सेल वॉल जिसकी बनी हुई होती है, ये किस-किस मोनोमर से बनके बना हुआ होता है। ये आपका आज का क्वेश्चन है। इवन ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट आर द, अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहें, व्हाट आर द मोनोमर्स आर प्रेजेंट इन अ पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। क्लियर? सो इट्स इनफ फॉर यू फॉर टुडे।
एक चीज और, इन केस इफ यू आर if you have a planning to prepare your medical entrance examination along with your 12th class, please let me know. So accordingly I can start the to prepare material for you. Okay, so please let me know कि अगर आप मेडिकल के साथ में भी जाना, हाँ मैं आपको मेडिकल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी, क्योंकि अभी एकदम कोर में गए नहीं है। जैसे हम कोर में आएंगे तो मेडिकल क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। इनके सेपरेटली अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो प्लीज लेट मी नो, तो अकॉर्डिंगली आई कैन गिव यू द क्वेश्चंस एंड नोट्स ऑल्सो। ठीक है, सो फिर मिलेंगे आप सब नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप घर पे रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।